Assalamu alaikum students. This is Sir Anwar. Today we have lecture number 18 and it's about how to prepare and give oral presentation. And this is part one. Remember this topic, how to prepare and give oral presentation. It consists of two parts. इसके दो हिस्से हैं. एक lecture 18 में आपको बताया जाएगा and the second will be the half will be delivered to you in lecture number 19. And remember this will be your 15 marks, and you have to follow the rules and regulations which you are going to be given through these two videos, through these two lectures. So let's start. Tips for presentation. So as you know, all know that presentation plays a very important role in our life. Wherever we go, we have to give presentation. Whether you are a teacher, doctor, you are a you work at office, wherever you go, whatever you do, we or everyone has to give presentation. You must have seen people, you know, giving presentation. Those who give good presentations, so they become famous. Those who do not give good presentation, so they face problems. इवन अगर आप देखें एक रेडी वाले को, तो वो भी एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है. अगर वो अपनी चीज़ें अच्छी तरीके से और साफ़ सुथरे अंदाज में भेज रहा होता है, तो ये भी उसकी एक प्रेजेंटेशन कहलाती है. इसी तरह से इन एकेडमिक वर्ल्ड when we want to uh, tell somebody else something, so we do what we have one very interesting way, and that is called presentation. We present our topic through multimedia, or we present our topic through different other ways. So this is what we call oral presentation. So let's talk about uh, tips for presentation. So how to prepare an oral presentation. First steps. There are some steps which you have to follow first. Uh, First of all, time. Time is very important. Unfortunately, many students do not realize this thing. बहुत से students इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, और वो time का तो ख्याल किसी चीज़ में भी नहीं रखते. It has been observed that they keep doing their paper till the end of the last minute in their examination room. अपने आखिरी मिनट तक पेपर करते रहेंगे, और उसका नतीजा ये होता है कि they are deprived of proofreading. And since they do not do proofreading, so there are many mistakes which are left, and due to those mistakes they do not get good marks. तो क्या है कि वो जो गलतियाँ उनकी रह जाती है, उससे उनका इंप्रेशन बहुत बुरा जाता है उनके टीचर पर, और वो अच्छे नंबरों से महरूम हो जाते हैं. सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वन शुड मैनेज टाइम. स्टूडेंट्स को या किसी को भी, हाँ वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी हो, time is something that is key. Time is something that is, that is why it is called time is money. So we must be very careful about time, and we must manage time very carefully. So check first of all the time that has been allowed or given to you for presentation. Now there are, it differs from presentation to presentation. कुछ presentations ऐसी होती है जिनमें time जो है आधा घंटा दिया जाता है, कुछ ऐसी होती है जिसमें time जो है वो 20 मिनट दिया जाता है. But in your case, the time which I will give you is 3 to 5 minutes. आपको जो प्रेजेंटेशन के लिए टाइम मिलेगा वो 3 से 5 मिनट मिलेगा, जिसमें आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी. एंड देर आर डेफिनेटली गाइडलाइंस विच यू हैव टू फॉलो. कुछ गाइडलाइंस भी है जिनको आपने फॉलो करना होगा. सो चेक द टाइम अलाउड फॉर योर प्रेजेंटेशन. पहली जो चीज़ है आपको जहन नशीन करनी होगी. इफ़ यू गिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, अगर आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उस सूरत में भी आपने टाइम को अपने जहन में रखना होगा, 3 to 5 minutes. If you go beyond the time, if you do not finish your presentation on time, so it will count negative. तो इसको फिर नेगेटिव काउंट किया जाएगा. इसी तरह से अगर आपने प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी ख़त्म कर दी, 1-1.5 मिनट में ख़त्म कर दिया, 2 मिनट में, सो इट विल ऑल्सो काउंट नेगेटिव. तो इसको भी नेगेटिव काउंट किया जाएगा.
दोनों सूरतों में ये नेगेटिव काउंट होगा, बिकॉज इट इज़ योर इनएबिलिटी, और इट इज़ योर, यू कैन से इनएबिलिटी दैट यू हैव नॉट डन इट ऑन टाइम. सो टाइम इज 3 to 5 minutes. तो अगर आप 4 मिनट में ख़त्म कर देंगे तो इट्स ऑल राइट. इफ़ यू फिनिश in 2 minutes, 2.5 minutes, it's also okay. But if you finish in 2 minutes, or if you finish in 6 7 minutes or 8 minutes, so this is wrong. तो 3 से 5 मिनट की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए. अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि सर टाइम बहुत कम है, तो भाई जितना आपको वक्त दिया जा रहा है तो उतने ही वक्त में आपने प्रेजेंटेशन देनी है. आप अपनी मर्जी से थोड़ी वक्त निकाल लेंगे. बाज़ औक़ात कुछ प्रेजेंटेशन जैसे बड़े एम फिल और पीएचडी की जो प्रेजेंटेशन, एम फिल की प्रेजेंटेशन होती है, या उसमें आधा आधा घंटा में प्रेजेंटेशन में के लिए दिया जाता है. तो वी prepare our presentation according to the time. We have 30 minutes, so we have to prepare so many slides, and then we have to give that presentation. So here, since you have to cover only 10 or 15 marks, so your presentation will be of 3 to 5 minutes. तो इस हवाले से अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है. सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन योर माइंड. So if you have any question regarding time, so you can ask me. Second thing, if you have no question, then go to the next one. The second thing that you have to keep in your mind, or you have to take it seriously, is think about the purpose of your presentation. अब पर्पस क्या है आपके प्रेजेंटेशन का, ये आपको सोचना होगा. आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, आई विल योर टीचर विल गिव यू द टॉपिक. In some cases it happens that you select topics yourself, but here in this case your teacher will give you the topic. आपको आपका टीचर टॉपिक दे देगा. अब आपको उस पर्पस के बारे में सोचना होगा, यार मैंने प्रेजेंटेशन देनी तो उसका मकसद क्या है. इज इट टू इन्फॉर्म, टू entertain, or to persuade your audience? क्या है मकसद? So of course you are the student of literature, and here your purpose is to inform, not to entertain or to persuade your audience. तो आपका यहाँ जो मकसद है वो क्या है, इन्फॉर्म करना है. कि you have to give knowledge, you have to give information to your audience that this is the information that I'm giving you. So you will be given different topics, and you have to prepare your topics well. And remember, whether you have to give online presentation or presentation in the university, this is something I will tell you inshallah within a day or two. एक आध दिन में आपको मैं बता दूंगा. तो उस लिहाज से आपने फिर जो है प्रेजेंटेशन देनी होगी. अगर वो यूनिवर्सिटी के अंदर देनी होगी तो आपको उसका तरीका ही पता है कैसे आपने करना है. ठीक है. तो आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके आपने अब पावर पॉइंट में ही तैयार करनी है, तो उसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा. और फिर ये है कि इसका मकसद जो है अभी आपके सामने क्या है, इन्फॉर्मेट, टू इन्फॉर्म. तो व्हेन यू गिव योर प्रेजेंटेशन, सो यू मस्ट नो अबाउट इट्स पर्पस. इज इट टू इन्फॉर्म, टू एंटरटेन, और टू परsuade your audience? So any question regarding this you can ask. The third thing is think about the audience. When you give presentation, or if you intend to give presentation, you must think about the audience.
So here in this context, your audience will be your class fellows, and your audience will be especially your teacher. They are your audience. So think about the audience. Who are they? How much do they already know? How much do you need to tell them? And what will interest them? These are the questions which you have to ask yourself so that you can prepare a good presentation. Again, who are they? How much do they already know? Who are they? How much do they already know? Again, who are they? कौन है वो? As I told you, your audience will be your class fellows and teachers. How much do they already know? उनको पहले से कितना मालूम है, तो आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि of course, but how much they already know. तो टीचर्स को हटा के आप क्लास फेलोज का भी जहन में रख सकते हैं कि उनको कितना मालूम होगा. तो डेफिनेटली टीचर्स इस क्लास फेलोज में हो सकता है कुछ को बहुत कम हो, कुछ को थोड़ा ज़्यादा हो. तो आपने अच्छी तैयारी उस लिहाज से करनी होगी. How much do you need to tell them? So as I have told you that this is 15 mark प्रेजेंटेशन. ठीक है, 15 नंबर की प्रेजेंटेशन है और 3 से 5 मिनट आपके पास हो गए. 5 मिनट मैक्सिमम समझ ले, तो आपने उस लिहाज से अपना जहन जो है वो बनाना होगा कि आई हैव टू टेल दिस मच. रिमेंबर, दे आर कैटेगरीज लाइक इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो आपने सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर जाना होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट के बाद आपने फिर किस पर जाना होगा? लेस वेरी इम्पॉर्टेंट पर. फिर अगर कुछ आपके पास टाइम बचता है तो देन यू कैन गो फॉर important, right? So it is, this is how you can categorize things, and you can tell if you have time then you can go for more and more. What will interest them? उनको क्या इंटरेस्ट ज़्यादा देगा, यानी किससे उनको ज़्यादा मज़ा आएगा सुनने में और वो ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे. सो दिस इज़ अगेन समथिंग दैट यू हैव टू थिंक योर सेल्फ. कोई दूसरा आपको आके नहीं बताएगा कि भाई क्या चीज़ें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगी. आपको अंदाज़ा होना चाहिए. जब आपको अंदाज़ा होगा जब आप प्रिपरेशन करेंगे प्रेजेंटेशन की. सो प्रेजेंटेशन इज़ एन आर्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Everyone in their life gave presentation. As I told you, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि presentation is everywhere. Wherever we go we see presentation, we give presentation. It is not only fixed for students or teachers, no, everywhere. Even if you are, जैसे कि अगर आप कोई कारोबार कर रहे होते हैं, या मैंने आपसे जाना कि आप छोले की एक रेडी लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए. अगर आपकी रेडी साफ सुथरा, अगर जिसने ये कारोबार करना हो तो वो अगर अपने जो व्हील बैरर उसको साफ सुथरा रखेगा, नीट एंड क्लीन रखेगा, प्लेट्स और एवरीथिंग ही keeps neat and clean, so it is his it is his presentation, so people will come to him. Though he sells a little expensive, अगर वो थोड़ा महंगा ही बेचेगा तो लोग उसके पास आएंगे और खरीदेंगे और उससे खाएंगे. उसके बरक्स, if there is another wheelbarrow selling chole, so what happens that since his presentation is not good, उसकी presentation अच्छी नहीं होगी, मक्खियाँ मिनमिना रही होंगी, गंदगी होगी, तो लोग उसके पास जाने से को अवॉइड करेंगे. why? because presentation is very important. इसी तरह से हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी होती है, हमारा मतलब लुक, हमारी हमारा अपेयरेंस, और ये सब कुछ कितना अच्छा होता है. ये भी एक तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आई एम हियर फॉर इंटरव्यू. सो रिमेंबर, ऑडियंस वेरी इंपॉर्टेंट. तो हर जगह हमें ऑडियंस का सामना करना पड़ता है. ऑडियंस के बारे में हमें ये नॉलेज होनी चाहिए. एनी क्वेश्चन प्लीज? रिमेंबर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. The next one is
decide on the topic if you do not know this already. अगर आपको आपका टॉपिक नहीं मालूम, डिसाइड ऑन द टॉपिक मीन्स आपने अपने टॉपिक पर डिसाइड करना है. इफ यू डू नॉट नो दिस ऑलरेडी, बट इन योर केस नॉर्मली ऐसा भी होता है कि यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ ऑन द टॉपिक इफ यू डोंट नो योर टॉपिक ऑलरेडी. बट इन योर केस योर टीचर विल गिव यू द टॉपिक. आपका टीचर आपको टॉपिक देगा. मीन्स आई एम योर टीचर एंड आई विल गिव यू द टॉपिक. सो देन डोंट वरी अबाउट द टॉपिक. I will give you the topic, and remember, I have written names with me, and I will give one topic to maybe 5 or 6 or 7 students, because forty-five there are around 45 or 50 topics, 50 students. So it is not possible for me to give one topic to each student. So I will give one topic to 5 to 6 students. So टॉपिक एक होगा, स्टूडेंट्स 6-7 होंगे. तो ऐसा नहीं है कि आप सबको एक साथ ये प्रेजेंटेशन देने की. यू हैव टू गिव इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन आपने इंडिविजुअल ही देनी होगी. हाँ, तैयारी अगर आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन आपने अलग अलग ही देनी होगी. इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 3 से 5 मिनट की प्रेजेंटेशन हो, क्योंकि ग्रुप प्रेजेंटेशन में देखा गया, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन ग्रुप प्रेजेंटेशन दैट स्टूडेंट्स चीट अलॉट. स्टूडेंट्स में चीटिंग बहुत ज़्यादा आम हो जाती है, जिसको हम प्लेजरिज्म भी कहते हैं. One student does preparation and other students, or 2 students do preparation and other students try to get advantage of the preparations of those 2 students. और 2 बेचारे बाद में आगे बताते सर तैयारी तो हमने की थी, हमें भी उधर मार्क्स मिले, उनको भी, तो आपने क्यों उनके साथ शेयर किया. तो मतलब कहने का है कि उन बेचारों के साथ जाती जाती है, और जो मेहनत नहीं करते वो बिला वजह में बगैर मेहनत के मार्क्स ले जाते हैं. इसीलिए ये फैसला किया गया कि इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन होगी और उस प्रेजेंटेशन को आपने देनी होगी. एंड दिस प्रेजेंटेशन विल also tell us about your ability. It will also tell us about your confidence and your knowledge, कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितना कॉन्फिडेंस है, और कितनी आपके पास सलाहियत है नॉलेज को डिलीवर करने की. एंड दिस इज समथिंग दैट विल आल्सो हेल्प अस इन गिविंग यू गुड मार्क्स. इससे आपकी अपनी शख्सियत का ही पता चलेगा कि आप लिटरेचर के हवाले से कितना आपका टेस्ट है. सो दैट इज़ वाई प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट. सो योर टीचर विल गिव यू द टॉपिक. एनी क्वेश्चन? Save. The next one is if you do decide on the specific area that you will present. Now अगर आपसे कुछ कहा जाता है कि आप सेलेक्ट करें किसी टॉपिक को, या मैं आपको कोई टॉपिक दे देता हूँ, ठीक है, जो मैं दूंगा. So you have to decide on the specific area that you will present. As I told you that do not bring many points that will create problem for you to present in the limited time, in the limited time. यानी कि जो आपको वक्त दिया गया उस टाइम में ऐसा ना हो कि वो होना, आपने सर मेरे पास बहुत कुछ बोलने का था लेकिन मैं बोल नहीं सका, या मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उस सूरत में भी आप नेगेटिव जाएंगे, आपका ये जो है नेगेटिव काउंट होगा. दैट इज़ वाई रिमेंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ टाइम. वक्त को आपने लाजमी अपने जहन में रखना होगा और उस लिहाज से डिसाइड कीजिएगा, स्पेसिफिक एरिया किसको लीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई गिव यू द टॉपिक द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लॉट इन अ ट्रेजेडी. अगर ये आपके पास टॉपिक है तो आपने करना है क्या है, ज़ाहिर है आप प्लॉट के बारे में पहले बताएंगे, प्लॉट होता है क्या है, फिर उसके बाद आपने उसकी काइंड्स बतानी है, और प्लॉट का रोल काइंड्स बतानी है, और उसे बताना है कि कौन सी काइंड है प्लॉट की दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ समथिंग दैट ब्रिंग्स catharsis. And catharsis means
Catharsis means it is the ultimate aim or end of a tragedy. So decide on the specific area that you will present. As I told you that you have to categorize things into 3 to 4 category. First very most important, then very important, and third one is important, और फोर्थ वन में आप लेस इंपॉर्टेंट को रख सकते हैं. तो इस तरह से अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो इंशाल्लाह थिंग्स विल बी गुड फॉर यू. बट इफ़ यू डोंट कैटेगराइज देन यू विल बी इन ट्रबल. और फिर क्या होगा कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट को मिस करके लेस इंपॉर्टेंट को डाल देते हैं, और दे मिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड दे इंक्लूड लेस इंपॉर्टेंट, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको डाल देते हैं. तो उससे क्या होगा, दे विल लूज मार्क्स. That is why please take care of it. So decide specific on the specific area that you will present. Any question please? Number 6 is be realistic. Be realistic about how much you can cover in the time allowed. As I've already mentioned this thing as well in bits, that sometimes students choose so many things that they do not present, or they cannot present in the time allowed. And then later on they say, sir, I'm very sorry sir, I selected or I had so many things to present but I did not have enough time. तो टाइम तो आपको पहले बताया जा चुका था ना. अब एग्जाम्स में 2 घंटे का पेपर होता है आपका टर्मिनल का. अब वहाँ पे आप जो है 2 घंटे में आपने 2 सवाल किए और आपको करना 4 सवाल था. तो अब ये थोड़ी रीज़न होगा कि सर मेरे पास लिखने को बहुत था इसलिए मैंने जो है 2 सवाल किए, 2 सवाल का टाइम रह गया. नो, you have to attempt your all the questions in 2 hours. Similarly here you have to present your things in 3 to 5 minutes, maximum 5 minutes, minimum 3 minutes. So be realistic. तो इसके लिए आप realistic रहेगा, और कोई भी एक्सक्यूज़ मत कीजिएगा. कोई भी एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा, कोई बहाना मत कीजिएगा, कोई भी इस तरह की चीज़ें पेश मत कीजिएगा, सर मेरे पास चीज़ें बहुत थी, सर मैं किसको छोड़ता, सर सभी इंपॉर्टेंट थी. नहीं, you have to be realistic about how much you can cover in the time allowed, so that whatever you present should be attractive and should have its impression upon your audience. So be realistic. So if you have any question regarding this point, you can ask me. Number 7, collect your ideas and gather more information if you need to. So ideas, the murad points. Of course, first you will collect ideas. You have lots of ideas with you, and you have to collect more ideas because now you are giving presentation. First, you had to study it simply, but since you have to give it its presentation, it means you need more information, more ideas, more points, and then you have to be very careful about the selection of the points, because each and every point you cannot mention. You have to mention, as I have told you, most important things, then very important things, then important if necessary. So collect your ideas and gather more information if you need to. अगर उसकी आपको ज़रूरत है तो, ज़रूरत नहीं है तो उससे अवॉइड करें. And if it is necessary and you need, then you have to do it. So once again, collect your ideas and gather more information if you need to. So this is point number 7, which you have to keep in your mind.
So any question regarding this? Remember, if you have any question regarding any one of them, so you can also ask me in the group. You can also ask me personally, and you can ask me in the next session, which will be online. Now, writing your presentation. How to write your presentation? Of course, when you're giving presentation through multimedia, so how to type your presentation? तो इसका ये भी राइटिंग ही में शुमार हो जाता है कि हाउ टू टाइप योर प्रेजेंटेशन. सो मेक नोट्स ऑन व्हाट यू वांट टू इंक्लूड. नोट्स वगैरह भी आप बना सकते हैं, यू कैन राइट नोट्स, but please avoid, a page. It has been observed many times that students bring a page and they read through the page. क्या करते हैं वो they start reading from the page and they are giving presentation. This is not called presentation. ये प्रेजेंटेशन नहीं होती, इसको फिर हम सिंपली रीडिंग ही कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन तो कम से कम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेजेंटेशन में रीडिंग नहीं होती. प्रेजेंटेशन में यू हैव टू सी द पॉइंट्स, you have to elaborate those points in your own words. तो इलाबरेशन होनी चाहिए ना, यानी कि उनको आप एक्सप्लेन करें अपने अल्फाजों में, ना कि आप उनको जो लिखा हुआ उसी को पढ़ते रहें और फिर पेज अपने हाथ में रखा हुआ पेज से आप पढ़ रहे हैं. तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बैड वे एंड दिस इज़ नॉट अ प्रेजेंटेशन एट ऑल. अवॉइड दिस थिंग. तो अगर आपने कोई नोट्स बनाने भी हों तो आप उसको चिट्स में बनाएंगे, छोटे से कार्ड, एक ही पेज के 8 टुकड़े टुकड़े आप कर लें, उन टुकड़ों छोटे छोटे चिट्स बन जाएंगे, कार्ड बन जाएंगे, उनके ऊपर आप लिख लीजिएगा सिर्फ अपने पॉइंट्स. या कोई कोटेशन आपने देनी हो तो उस कोटेशन को या उस कोट को उस पर लिख लीजिएगा जो आप दे दें. बाकी तो सब चीज़ें आपने खुद से ही कहनी होगी. यू हैव टू से इन योर ओन वर्ड्स योर सेल्फ. सो मेक नोट्स ऑन व्हाट यू वांट टू इंक्लूड. एनी क्वेश्चन? Second, think about what you must tell the audience, what you should tell them, and what you would like to tell them if you have time. तो जब आप बना रहे होंगे तो उस दौरान आपने ये देखना है कि क्या चीज़ ऑडियंस को लाजमी बतानी चाहिए, व्हाट यू शुड टेल देम, और क्या चीज़ आपको बतानी चाहिए, एंड व्हाट यू वुड लाइक टू टेल देम, और क्या आप बताना चाहेंगे इफ़ यू हैव टाइम. तो ये वही चीज़ है कि कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा अहम है, कौन सी चीज़ उससे कम है, कौन सी उससे कम है. जो मस्ट वाली वो पहले होनी चाहिए, इसके बाद शुड वाली होनी चाहिए, एंड द थर्ड वन इज़ व्हाट यू वुड लाइक, जो आपकी डिज़ायर है. इफ़ यू हैव टाइम, अगर वक्त हो तो उस सूरत में आप उसको करेंगे, अदरवाइज यू शुड अवॉइड इट. So this is the second thing that you have to do when you're writing your presentation. Third is produce an outline or a plan of your presentation. Up when you do it, so you must have an outline with you or a plan of your presentation with you. तो ये आप ज़रूरी कर लीजिएगा. It is very important. So what is the outline? You can see here tips. Structure your presentation as you do an essay. जैसे हम essay में अपने essay को structure करते हैं, in the same way you have to structure your presentation. Like you must have introduction, body, conclusion. आपके पास introduction होना चाहिए, body और conclusion, ये तीनों हिस्से होने चाहिए, तीनों parts होने चाहिए, right? So this is very important. In introduction, you are not supposed to tell about the author, or you're not supposed to tell about the writer. You have to tell about the टॉपिक. जैसे आपने अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देना है कि आपके पास जो टॉपिक है वो क्या है और उसमें आप क्या बताना चाहेंगे.
Then body, you have to go in detail, you have to give examples, you have to do comparison, and whatever you want to do you can do in body. Body means you are free to do all such things. देन फाइनली कंक्लूजन, कंक्लूजन में डिटेल्स नहीं होती, कंक्लूजन में आपने सिर्फ समराइज करना होता है, बताना होता है कि अब आपने जो बताया था बॉडी में उसको आपने मुख्तसर कंक्लूजन में बताना होगा, एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर ओन ओपिनियन इन कंक्लूजन. So structure your presentation as you do an essay, and this is how you have to structure. You have to divide your presentation into three parts: introduction, body, and conclusion. बॉडी के आपके पास 3 से 4 या 5 पॉइंट्स बन जाएंगे. इंट्रोडक्शन का एक ही स्लाइड होगा आपके पास, और कंक्लूजन का भी एक ही स्लाइड होगा. सो इंट्रोडक्शन 1 स्लाइड, कंक्लूजन 1 स्लाइड, एंड बॉडी 4 to 5 स्लाइड्स. तो इस तरह से कितने बन जाएंगे? 7 स्लाइड्स बन जाएंगे. और एक स्लाइड जो है वो आप फ्रंट का रख लीजिएगा, जिसमें आपने बताना होगा कि आप कौन है, किस क्लास से आप बिलोंग, नाम क्या है, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, हु इज़ योर टीचर, एंड व्हाट इज़ योर प्रेजेंटेशन टॉपिक. ये आपने उसको फर्स्ट पेज पर बताना होगा. ठीक है. और सेकंड पेज में वही आपके पास इंट्रोडक्शन होगा कि इस टॉपिक में आपने क्या बताना है और कैसे बताना है. फिर उसके बाद आपने 1 by 1 करके सब कुछ आगे बॉडी में बताना है, एंड देन कंक्लूजन में आपने इसको वाइंड अप कर देना. एंड लास्ट स्लाइड. थैंक यू वेरी मच. So these are the tips for the structure of presentation or your presentation. Use headings to show the different section of your presentation. Headings will help you a lot in this regard. वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा. So you can use headings to show the different sections of your presentation. Presentation के मुख्तलिफ sections को show करने के लिए heading का इस्तेमाल करें. As I told you that when you uh, when you make the body of the presentation, means you write your points, so you can mention the points through headings. तो हेडिंग्स के हवाले से एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि हेडिंग्स आपने मेंशन करना, और उसके बाद आपने फिर पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना. यू आर नॉट सपोज टू राइट द होल पैराग्राफ देयर. आफ्टर मेंशनिंग हेडिंग्स you have to write 1 or 2 points or 3 points. But unfortunately it has been observed that students write the whole paragraph, पूरा पूरा पैराग्राफ वो लिखना शुरू कर देते हैं, एंड देन दे रीड द पैराग्राफ देमसेल्फ. सो दिस इज़ नॉट प्रेजेंटेशन. चार्ट्स आर नेवर वर्डी. चार्ट्स याद रखिएगा कभी भी वर्डी नहीं होते. अल्फाज उसमें सॉरी, slides are never wordy. If you make your slides wordy, it means it is your failure. So avoid this thing. So use headings to show the different sections of your presentation. It will definitely bring beauty to your presentation. So this will be continued in lecture number 19. Here these are the points, and inshallah lecture number 19 में इसको जो है there are many other points which you have to see, and remember all these points are very important, and they will definitely make you a good presenter, and they will help you to present your ideas, to present your topic in a very decent and proper manner. So if you have any question regarding this, you can ask me. अगर इस हवाले से या इनमें से किसी भी चीज़ के हवाले से आपके पास कोई भी सवाल हो, तो आप उस हवाले से मुझसे मालूम कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं. Remember, in online classes, definitely you have the opportunity to ask question from your teacher. But unfortunately, students do not join. Student join नहीं करते या attend नहीं करते. That's the problem with your class. आप लोगों के साथ ये बड़ी problem है. Hardly 4 or 5 students or 6 students out of 50 or 60 attend the classes. तो जब आप classes attend नहीं करेंगे तो definitely you will face problem.
and it is not possible for me to attend your classes physically. I have requested, but unfortunately due to the current situation, as coronavirus is rising again, the number of infections are rising again, and even the number of deaths are rising again. So they have said that this semester we will go with online session. So very difficult to find rooms. फिर भी मैंने दरख्वास्त कर रखी है, अब देखो क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन ही पे चलना होगा। तो काइंडली यू मेक इट योर हैबिट, सॉरी, आप इसको अपनी आदत बना लीजिए और अपने सिस्टम को अपडेट करें। अब ये कहना है कि सर मेरे पास ये सहूलियत नहीं, वो सहूलियत नहीं, तो आई थिंक इट्स नॉट जस्टिस नाउ, it's not just now you have to update your system, you must have internet connection। अगर जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो वो आजकल पावर बैंक्स मिल रहे हैं, वो लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इवन यू कैन nowadays मोबाइल फोन्स यू कैन डू थिंग्स थ्रू मोबाइल फोन्स के अंदर जूम आप इंस्टॉल करके यू कैन easily listen and watch, or you can easily attend the session online, no problem at all। क्योंकि सिस्टम की ज़रूरत या लैपटॉप की ज़रूरत जो है, जो जूम का सेशन करवा रहा होता है उसको होती है, जबकि जो अटेंड करने वाले होते हैं वो बग़ैर इसके भी मतलब अपने सेशन वगैरह को अटेंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट lecture where we will inshallah complete this one। Thank you very much।